Hello, good evening. So today we will discuss the page number 244 as you can see in your textbook or on the video screen. So as you can see over there, the activity 14.3 is incomplete on this page. So what we can do, we will complete it on the next video. Okay. 14.3 एक्टिविटी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे. सो टुडे वी विल डिस्कस, वी विल लर्न टिल हियर. फाइन. ये एक्टिविटी आ जाएगा, डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा. एंड ये जो ऑरेंज ब्लॉक है उसको कैंसिल कर दीजिएगा. ठीक है. ये फिगर एग्जाम में नहीं आएगा, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए. ओके फाइन. नाउ वी कैन स्टार्ट द टॉपिक नंबर 14.2, that is conventional sources of energy. Now I think all of you are clear with sources of energy, but maybe you don't know about the conventional word. Conventional word means, past methods, very old methods. So conventional sources means before 1,000 years ago or crore years ago, which kind of sources of energy, okay, used, that is known as conventional sources of energy. Okay, so in that 14.2.1, fossil fuels. Now what is fossil fuels, how it forms? So what happened in ancient times? Ancient times means very large years ago, very more years ago. What happened कि many trees and dead bodies of animals get fallen down, okay, below the earth crust due to the natural phenomena like earthquake. So earthquake है या तो फिर सुनामी है, उसकी वजह से अर्थ के क्रस्ट में चला गया वो डेड बॉडीज और ट्रीज के जो भी पार्ट्स है वो. सो आफ्टर दैट, ड्यू टू बायोकेमिकल रिएक्शंस, ड्यू टू द हीट ऑफ earth crust, it will get converted into the fossil fuels. Okay, this process is approximately before lakh or crore years. Okay, now I'm reading line to line and explain to you. In ancient times, wood was the most common source of heat energy. Please underline this. Wood was the most common source of heat energy. If you will burn a particular wood, then you will get the energy. This was the most common source. Okay, heat energy मिलेगा. The energy of flowing water and wind was also used for limited activities like to producing electricity or like to uh, operating a fan. Let's say with the help of wind you can operate the fan. You can make a fan like structure, and on the wings of fan you can pass the wind, so that that wing will get rotate and you will get the fan operation basically. Same way with the help of flowing water, using of turbine. This we will discuss it on the next video. We will get the electricity. कैसे वो हम next video में पढ़ेंगे. Can you think of some of this uses? आएगा. The exploitation of coal as a source of energy made the industrial revolution possible. Explosion का मतलब होगा combustion. The combustion of coal, okay,
produce industrial revolution. The meaning of industrial revolution means many of the industries has situated in our country because of coal. Okay, so coal का energy सबसे highest use होता है. If we talk about production of electricity, then above 70% of the electricity is produced in India by coal. Okay, how? That we will discuss it in next video. That topic is thermal power plant. Don't worry. The next line is increasing industrialization has led to a better quality of life all over the world. Why not? Because if industrialization will get increases, then you will get better technology. Then our lifestyle will get better. Let's say पहले क्या था, सीमेंट फैक्ट्रीज नहीं थी, सो सीमेंट विल कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड. सो एट दैट टाइम जो भी बिल्डिंग्स बनी जाती थी, बिल्डिंग्स तो तब नहीं होती थी, वो विदाउट सीमेंट, just using a bricks, okay, they made a particular building. But nowadays cements are available, so building का जो base है वो ज़्यादा strong होगा, just because of this is the just a small type of industrialization. There are so many industrialization products, okay, from that we can get the better quality of life all over the world. So the next line is that is it has also caused the global demand for energy to grow at tremendous rate. Yeah, that's right. If industrialization will get increases, then industrial area need more energy. Let's say कि कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लोड का जरूरत होगा. सो फॉर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट, okay, the Indian government should produce more electricity. Okay, so at that case we have to provide more energy. The next line is that the growing demand for energy was largely met by the fossil fuels that I have told you already. Okay, mainly by coal and petroleum. By coal we can produce electricity, by petroleum we can run the vehicle, बाय डीजल इंजन आता है जिसके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है. सो मेनली बाय फॉसिल फ्यूल्स we are producing energy right now. Okay, our technologies were also developed for using this energy sources. That means if technology will get developed, then efficiency will get increases. कम फ्यूल्स में ज्यादा एनर्जी मिल पाएगा. सो टेक्नोलॉजी तो चाहिए इसे. मोबाइल में भी टेक्नोलॉजीज आ गया है. सबसे पहले मोबाइल कीपैड आते थे. देन समवन थिंक्स कि कीपैड में यू हैव टू प्रेस सम पर्टिकुलर की, सो टच आ गया. सो जिसकी वजह से प्रेस करने का जो फोर्स, ठीक है बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगता है, लेकिन फिर भी टच स्क्रीन इज मोर इजी टू ऑपरेट व्हेन वी टॉक अबाउट एज कंपेयर्ड विथ कीपैड मोबाइल. सो दिस आर द टेक्नोलॉजीज की जो डेवलप होती है. ओके, टेक्नोलॉजीज डेवलप होती है जस्ट बिकॉज ऑफ वट एवर डिफिकल्टीज वी आर फेसिंग इन रेगुलर डे. जो भी डिफिकल्टीज फेस होती है उसको ओवरकम करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है. चलो ठीक है, तो बात की बात है. नाउ आई एम रीडिंग नेक्स्ट लाइन, दिस वन. बट मिला, हाँ. बट दिस फ्यूल्स वर फॉर्म्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स अगो. है ना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कॉल के बारे में कि कैसे बायोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से फॉसिल फ्यूल बना था. एंड देयर आर ओनली लिमिटेड रिजर्व्स. ओके, so these fossil fuels are non-renewable energy sources. What is the meaning of non-renewable? Non-renewable means within a period of time you will not get it. That means if we talk about petroleum, then if we use the petroleum unlimitedly,
लेट्स से कि कैसे भी हम पेट्रोलियम का यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है फिर भी, सो ओवर 10 to 20 years, ओके, इट विल गेट, यू नो, वो मतलब नहीं मिल पाएगा हमको, इन शॉर्ट. सो दिस फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. फॉर एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट, आई वांट टू टेल यू वन टीवी एड. कि एक टीवी एड आता था, उसमें एक बंदा कार चला रहा है. सो ए ट्रैफिक सिग्नल, ओके, वो उसका कार ऑन कंडीशन में है. सो पेट्रोलियम यूज हो रहा है एट दैट टाइम. सो his child his child is sitting over there and asking to his father कि अगर आप अभी ऐसा करोगे तो फिर हमारा क्या होगा. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट ही मीन टू से, कि अगर आप ऐसे पेट्रोलियम का यूज करोगे, सो अपकमिंग जनरेशन विल नॉट गेट दिस फॉसिल फ्यूल्स. ओके, सो वी हैव टू आल्सो लुकिंग फॉर दैट. आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपको यूज नहीं करना चाहिए, बट यू हैव टू यूज केयरफुली. ओके, सेव एनर्जी इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज नॉट लाइक कि आप एनर्जी से जो भी टेक्नोलॉजी है, दैट इज फॉर आवर फैसिलिटी, दैट इज फॉर आवर फैसिलिटी. इफ वी रिक्वायर देन वी कैन turn it on, and if we don't require we can turn it off. Let's say at the time of summer, very hot atmosphere at afternoon, and for saving energy a person is turned off his fan. So this is foolishness, because फैन जो है उसका फैसिलिटी के लिए है. अभी हॉट एटमॉस्फेयर में वो फैन और एसी का यूज नहीं करेगा, सिर्फ एनर्जी बचाने के लिए. सो दैट इज फुलिशनेस. सो आप बोलोगे कि फिर सेव एनर्जी कैसे. अरे भैया, सेव एनर्जी मतलब कि जैसे कि हम बात करें कि लेट्स से बाहर से लाइट अच्छा आ रहा है, लेट्स से सनलाइट अच्छा है, सो यू नो नीड ट्यूबलाइट. ओके, सो ऑल्दो अगर हम ट्यूबलाइट ऑन कर रहे हैं, सो उसका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा उतना डिमांड बढ़ेगा. डिमांड बढ़ेगा, सो वी हैव टू प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी इन ग्रिड पावर स्टेशन. फॉर प्रोड्यूसिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी, coal will get more used. Okay, one of the thermal power station that we will study in the next video, the process of thermal power station. But in our Gujarat, वनाक बोरी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, उसमें वनाक बोरी थर्मल पावर स्टेशन है. अभी उसमें कॉल का ट्रेन चलता है, आपको पता होगा. तो गुजरात के तो सारे कॉल माइंस यूज हो गए. सो नाउअडेज गुजरात गवर्नमेंट इंपोर्टिंग द कॉल्स फ्रॉम बिहार एंड आंध्र प्रदेश. सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है. सो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे उतना ज्यादा कॉल यूज होगा. ये एक सोचने जैसी बात है. दिस इज वेरी फैक्ट. जस्ट इमेजिन कि फॉर एग्जाम्पल एक हाउस है, एक होम, वन होम सेविंग 1 यूनिट ऑफ एनर्जी पर डे. कि आप 1 यूनिट नहीं बचा सकते. बचाने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फैसिलिटी का यूज नहीं करना है, गर्मी में रहना है, या फिर यू नो डार्क रूम में बैठकर पढ़ना है. दैट इज नॉट पॉसिबल. ट्यूबलाइट इज द ट्यूबलाइट इज लाइक अ फैसिलिटी फॉर यू. इफ यू नीड देन यू कैन टर्न इट ऑन. लेकिन यू विल ऑब्जर्व कि आप भी फील करोगे कि कई बार हम कहीं का फैन ऑन रख देते हैं. सो जस्ट इमेजिन अगर आप 1 घंटा भी उसको अननेसेसरी ऑन नहीं रख रहे हो, सो आप फॉर एग्जाम्पल 1 यूनिट एनर्जी सेव कर रहे हो. ओके, सो जस्ट इमेजिन अगर ऐसा 1 लाख होम विल सेव द 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इन 1 डे. सो 1 डे में 1 लाख यूनिट ऑफ एनर्जी सेव हो जाएगा. सो जस्ट इमेजिन कि कॉल का कितना सेविंग होगा. ठीक है, क्योंकि डिमांड तो बढ़ी रही है जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन. नाउ द नेक्स्ट लाइन, आई हैव फॉरगॉटन कहाँ पे आए थे हम. यहाँ पे है ना. इफ वी were to continue consuming these sources at such
अलार्मिंग रेट्स मतलब ठीक है, अलार्म बज रहा है कि अभी खत्म हो जाएगा, फिर भी हम यूज कर रहे हैं, तो फिर वो क्या होगा कि वी शुड soon run out of energy. Just a second, I want to drink water. Okay, fine. So in order to avoid this, alternate sources of energy were explored. Like you can use solar energy. This is the best alternate option for the fossil fuels. अभी तो जो ट्रेन है उसके द रूफ्स ऑफ ट्रेन आर ऑल्सो मेड अप बाय सोलर. उसके भी फोटोज अब सोशल मीडिया पे अपलोड होते रहते हैं कि सोलर रूफ से पूरा ट्रेन बनाया गया है. ठीक है, सो सोलर इज द बेस्ट ऑल्टरनेट ऑप्शन बिकॉज अभी सोलर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. सोलर पैनल है, सोलर पैनल का आप देखोगे अब मोस्ट प्रोबेबली यू नो 1 होम इन एट द रेट ऑफ 10 होम, मतलब 10 में से एक घर में आपको सोलर पैनल अब देखने मिलेगा. ये बढ़ता ही जाएगा, उसमें कुछ गलत नहीं है. सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं होगा. सोलर में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है वो आएगा, उसका कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर से रिलेटेड है, वो हम आपको न्यूक्लियर एनर्जी में पढ़ाएंगे. वो वीडियो में डिस्कस नहीं होगा, वो तो हमको रेगुलर क्लास में ही पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, इंटरेस्टिंग है बाय द वे. Now, but we continue to largely depend on fossil fuels for most of our energy requirements. Figure 14.1, I will discuss it later on this video. Now I am reading second paragraph. Burning fossil fuels has other disadvantages too. Yeah. अच्छा, मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा. अब जैसे कि फॉसिल फ्यूल है, फॉर एग्जाम्पल व्हीकल में जो पेट्रोलियम यूज होता है या फिर पावर प्लांट में जो कॉल यूज होता है, उससे जो कंबस्टिव प्रोडक्ट, उसका बर्न करने से जो भी प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसमें मेनली होता है सी कार्बन, आप स्क्रीन पे देखिएगा, एन नाइट्रोजन, ओके, एंड एस सल्फर. अब इसका कंबशन कर रहे हैं हम, दैट मीन्स इट विल गेट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मेक कार्बन डाइऑक्साइड, that is CO2, nitrogen dioxide, that is NO2, sulfur dioxide, that is SO2. Now these oxides are acidic. What is the meaning of acidic oxide? That we will study in chapter number 2. But in short, I can explain what is the meaning of acidic oxide. If any particular oxide will react with water and make acid, then that oxide is termed as acidic oxide. अभी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ गया, अब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होगा, दैट मीन्स H2O पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स, रेन होगा. सो रेन में जो वाटर होगा, ये सारे ऑक्साइड वो रेन के वाटर के साथ में रिएक्ट होकर एसिड बनाएंगे. CO2 कार्बोनिक एसिड बनाएगा, NO2 नाइट्रिक एसिड बनाएगा, SO2 सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा. So ये acid as an acid rain, as in the form of acid rain, okay, it will get fallen down on the earth surface and it will get affect to the soil resources and water resources. So just imagine कि ये fossil fuel का यूज करने से कहाँ इफेक्ट होता है. एंड अनदर थिंग कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने से एयर पॉल्यूशन में ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को सिर्फ एक ही चीज कंज्यूम कर सकती है, दैट इज ट्री, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. और कोई ऐसी चीज नहीं है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर सके. हर एक एनिमेट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, कोई भी कंज्यूम नहीं करता है. ओके, अपार्ट फ्रॉम ट्री. ट्री जो होता है वही कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है. सो हमको अगर पॉल्यूशन कम करना है, सो वी हैव टू मेक मोर ट्री प्लांटेशन. फाइन. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू द मीनिंग ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? लेट्स से दिस semicircular part is the surface of earth and this is atmosphere.
सो व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? द सडन इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गया है एटमोस्फियर में. लेट मी चेंज द पेन कलर फर्स्ट. ओके फाइन. जो सन रेज आते हैं अर्थ पे, वो रिफ्लेक्ट होके बाहर जाते हैं. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में कैपेसिटी होता है. कार्बन डाइऑक्साइड हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक दैट इट विल एब्सॉर्ब द सन रेज. अब सन रेज को CO2 वापस नहीं जाने देगा. दैट मीन्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर विल गेट इंक्रीजेस. सो that will increase the global temperature of the earth, and this effect is called as greenhouse effect. The meaning of greenhouse effect is very simple. The sudden increase of carbon dioxide will causes the increasing in temperature, and this effect is known as greenhouse effect. वीडियो में देखना, यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया है इसको. ठीक है. नाउ वॉच बिलो द ऑरेंज ब्लॉक. The pollution caused by burning fossil fuels can be somewhat reduced. अब यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट दी गई है. बहुत से ट्रीटमेंट प्लांट है. There are two type of combustion: complete combustion and incomplete combustion. In complete combustion, there is no byproduct. There are no byproducts. Let's say कि LPG गैस को हम बर्न कर रहे हैं over the gas stove. वहां पे देखना आप कंप्लीट कंबशन होगा, ब्लू कलर का फ्लेम आएगा. सो उसमें कहीं पर भी एशेस नहीं आएंगे. लेकिन वुड को अगर बर्न करेंगे ना, दैट इज इनकम्प्लीट कंबशन विच इज येलो कलर इन फ्लेम. सो उसमें उसका एशेस प्रोड्यूस होगा. वो एशेस जो होते हैं वो एटमोस्फियर को इफेक्ट करते हैं. सो इफ पॉसिबल देन वी हैव टू यूज अ प्रोडक्ट विच विल गिव कंप्लीट कंबशन. So basically it will increase the efficiency of combustion process. अगर efficiency increase होगा तो combustion is nearer to a complete, its completeness, उसके completeness के नजदीक होगा. ठीक है. और अगर ashes आ रहा है तो उसको हम कोई भी ट्रीटमेंट कर कर उसको हम कम कर सकते हैं. अब जनरली जो मेजर फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसका यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. कैसे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. वो एक्टिविटी में दिया गया है. थर्मल पावर प्लांट का एक प्रैक्टिकल मॉडल बनाया है एक्टिविटी 14.3 में. बाय यूजिंग अ टेनिस बॉल. वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो. नहीं, बस ये पैराग्राफ में यही दिया है, पढ़ लेना. अगर नहीं समझ में आया, you can comment in comment section. Now I want to explain figure 14.1. This is pie chart. This you have studied in 8th standard. Pie chart में होता क्या है? Just look at on the screen. अरे, just let me change the pen color first. Okay, fine. This is circle. इसका हाफ कर देंगे, ये 50% 50% हो जाएगा. फोर्थ पार्ट कर देंगे 25 25 25 25 हो जाएगा. अगर हम ये उसके पार्ट्स है लाइक अ पीसेस ऑफ पिज्जा. ओके. जो ज्यादा एरिया कवर करेगा उसका परसेंटेज ज्यादा हो. सिंपल. सो एज यू कैन वॉच इन द फिगर, रेड पार्ट इज लार्जर, सो दैट इज कॉल. व्हाट इज दिस? This is the content of fossil fuels from which we are generating the energy in India. So I have already told you more than 70% of electric energy is generating from the coal. So which is also given in this figure, the red part, and the green part is petroleum and natural gas. Natural gas, that is CNG, compressed natural gas. Hydro, that is water flow, वो हम पढ़ेंगे. दैट इज हाइड्रो पावर प्लांट, सरदार सरोवर डैम. वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है. कि हाइड्रो मीन्स वाटर, थ्रू वाटर वी कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. देन ब्लू कलर पार्ट, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी.
न्यूक्लियर एनर्जी हम वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे ही नहीं, वो हम पढ़ेंगे क्लास में डायरेक्टली, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ने के लिए ओके यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, I have to be very attentive at the same time, and I have to explain with board. Okay, so that is the limitation right now. That's why we will not complete this nuclear energy topic. वो हम क्लास में पढ़ेंगे. न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली होता क्या है कि आप न्यूक्लियस के बारे में 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. सो बाय interactions of proton and neutron we are getting so much amount of energy that is termed as nuclear energy. Then the yellowish part that is wind energy. Okay, उसमें बहुत कम है. ठीक है, so this is all about this video. Thank you very much. In the next video we will discuss page number 245 along with the activity 214.3. Thank you very much. Okay.